have dealt about electric field and potential due to coaxial cable. Today, we are going to deal electric field and potential due to uniformly charged sphere. Let us say this is a uniformly charged sphere of radius r. Let us suppose the total charge contained in the sphere of radius r is q. We are required to find electric field at r greater than r. We are required to find electric field r equal to r. We are required to find electric field r less than r. We are required to find potential r greater than r. We are required to find potential r equal to r. We are required to find potential r less than r. कोई दिक्कत? सारी बातें ठीक ठीक समझ में आ रही है. स्मॉल r जो है इट इज द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस. कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर. इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा. उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट E for r greater than r. What we see here is, let us suppose this is the Gaussian surface of radius r. So we have from Gauss law EDS Q is by epsilon naught. E, I am considering this as S1 suppose for the clarity. This is S1. E 4 pi r square is equal to, what is the charge enclosed? Capital Q by epsilon naught, or E equal to Q upon 4 pi epsilon naught r square. नो प्रॉब्लम. ये कॉमन फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है, हम लोग यही जानते हैं. द होल चार्ज इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर. इस चीज का सदा ध्यान रखिए. बट नाउ द सेकंड पार्ट इज E r is equal to r. Just put r equal to r. So we will find E equal to 4 pi epsilon naught r square. Third is E r less than r. Just have a look. This is the case. Now we are considering this r surface is S3. हम लोग को ये देखना पड़ेगा. From the Gauss law we have EDS Q in by epsilon naught. So E, what is ds? 4 pi r square. This is S3. Q in is plus Q by epsilon naught. So E equal to Q dash upon 4 pi epsilon naught r square. Suppose this is one. Here, the charge enclosed is considered to be Q dash. Total charge is not enclosed, but few of the charges is enclosed inside the Gaussian surface. That's why we have considered the charge enclosed is Q dash. We will have to find the value of Q dash in terms of Q. बातें समझ में आ रही है? Now, अगर यहां तक बात ठीक ठीक समझ में आई है, तो what we can do is, what is Q? Q is equal to volume charge density into volume, that is rho 4 by 3 pi r cube. Q dash is equal to rho
4/3 pi r cube. So q dash by q is equal to r cube by r cube. कोई दिक्कत? That should not be fine. So we can just put the value. We have E is equal to q dash 4 pi epsilon naught r square. So E r cube by r cube 4 pi epsilon naught r square. So E QR 4 pi epsilon naught r cube. You can see directly proportional to r. E is directly proportional to r. ये छोटी छोटी बातें आपको सदा ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो। ना यहां तक लिख लिया? Can I? Yes. क्या सोचो? Now let us calculate the potential due to uniformly charged sphere. First, we are required to find the potential when R is greater than R. We have the relation E is equal to minus of dV by dr. So dV क्या होता है? Minus of E dr. ऐसा होता है क्या? हमको पोटेंशियल निकालना है V is equal to minus of E dr. This is infinity to R. E क्या होता है आउटसाइड? Q upon 4 pi epsilon naught r square dr infinity to r. That is, we can write minus Q upon 4 pi epsilon naught minus 1 by r infinity to r. Can I? थोड़ा सा हम लोग करते हैं. Can I? बोलो. लिख लिए? ना. हम लोग लिख पाएंगे V equal to Q upon 4 pi epsilon naught. बात ठीक समझ में आई है? हेलो? दिक्कत कहां हो रही है? अरे R माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो आ जाएगा ना. Now, next is V for R equal to R. हम लोग लिखेंगे just put the value of this Q upon 4 pi epsilon naught R. दिक्कत जो आना है वो अब आना है. अगर हम लोग लिखेंगे V for R less than R. हमको यदि ये निकालना है तो क्या करना होगा? करना कुछ नहीं है, काम वही है. V is equal to minus of ETR infinity to R. यहां पर हम लोग ये R ले रहे हैं when the surface is S3. इस चीज का ध्यान रखिएगा. हमको देखना होगा V infinity to R EDR minus R to R EDR. इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. We have just broken into two parts. इन्फिनिटी से R में आ रहे हैं और R से स्मॉल r में आ रहे हैं. हमको यहां पे निकालना है. फाइन. Since the electric field outside and electric field inside are different, इसीलिए हमको दो भाग में इसको तोड़ना पड़ा है. ध्यान इस चीज का रखना ज्यादा जरूरी है. हमको देखना है V is equal to minus Q upon 4 pi epsilon naught R square dr infinity to R.
माइनस ये इनसाइड द स्फीयर है, ये क्या होता है क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू डी आर। शायद याद हो आपको, ऐसा निकाला था क्या मैंने अभी अभी इसी में। यस, सो वी कैन राइट v इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यू r डी आर R2 हो सकता है ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अगर हम लोग ऐसा लिखेंगे तो वी कैन अगेन राइट लाइक, जस्ट हम लोग यहां से मैं लिख रहा हूं v इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यू r स्क्वायर बाई 2 r2 r। कोई दिक्कत? बातें ठीक समझ में आ रही है? नाउ v इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यू r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये भी हो सकता है। यस, हम लोग लिखेंगे v इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इसको कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 2 r स्क्वायर। बोलो बाबू, होगा? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग सीधा लिखेंगे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r 1 माइनस r स्क्वायर बाय 2 r स्क्वायर माइनस 1 बाई 2। बात ठीक समझ में आ रही है ना? हम लोग सीधा सीधा लिख पाएंगे v इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r 1 माइनस r स्क्वायर बाय 2 r स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 और v इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r 3 बाई 2 माइनस और v is equal to q upon 8 pi epsilon naught r 3 minus r square by r square। बातें समझ में आ रही है? Just put r equal to r, you will get the same thing. You will get the same thing. You can verify the thing. इससे हम लोग को ये पता चलता है this is the general method. Now, can I सारी दिक्कत पूरी हो गई है क्या? कोई दिक्कत है प्रूफ में? नो दिक्कत, वेरी गुड। काम वही करेंगे हम लोग। सबसे पहले समरी, फर्स्ट r ग्रेटर देन r, e क्या होता है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, v क्या होता है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, r इक्वल टू r, e इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, v इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। थर्ड,
or less than R. E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R cube. V is equal to Q upon 8 pi epsilon naught 3 minus R square by R square. यह समरी आपका हर समय काम आने वाला है, इस चीज को सदा ध्यान रखिएगा। ये समरी हर समय काम आने वाला है आपको, किसी भी हालत में, किसी भी पोजीशन में, जब 11th आवर ऑफ द एग्जामिनेशन जब रहता है, लास्ट मोमेंट में आप इधर उधर पलटते रहते हैं, क्या करें नहीं करें, हाँ करें, ये समरी उस समय आपका बहुत काम आने वाला है। इसलिए समरी पर बहुत जोर दीजिएगा, और हर एक का समरी में जानबूझ के इसलिए लिखा रहा हूं, ये समरी आपके दिमाग में एकदम से फिट रहना चाहिए। बाकी प्रूफ तो सारा है ही, अगर समरी समझ में नहीं आता है, गो फॉर द प्रूफ, सब कुछ आपके साथ है। नाउ हम लोग यहीं पे नहीं रुकेंगे, लेट अस मेक द ग्राफ ऑफ दिस। दिस इज आर। हम लोग यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाते हैं आर से, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, आर लेस देन आर, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, इट गोज लाइक दिस। आउटसाइड दिस इट वेरीज लाइक 1 by r square। ये चीज सदा ध्यान रखिएगा, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फाइन, कैन आई प्रोसीड? बातें ठीक समझ में आ गई है तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। पढ़ो? यस, ओके। Now let us write electric field due to charged sheet of infinite extension. देखने की जरूरत ये है, charge sheet. Let us consider a small area ds and the electric field let sigma is equal to areal charge density. So from the Gauss law we have EDS plus EDS is equal to sigma ds by epsilon naught. हम लोग लिख सकते हैं 2EDS sigma ds by epsilon naught, दोनों ds स्क्वायर, E is equal to sigma by 2 epsilon naught। इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? शीट की। व्हाट इज द शीट? जिस प्लेट का थिकनेस हम लोग 0 ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द शीट। इस चीज का ध्यान रखिएगा।
शीट में प्लेट का थिकनेस 0 होता है। नाउ सेम थिंग वी कैन गो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेट। ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंशन। अब यदि मैं चार्ज प्लेट की बात बोलूं तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात तो यह है कि वील हैव टू मूव विद द थिकनेस ऑफ द शीट। अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो ये होगा, ये थिकनेस है, है ना? थिकनेस इज टी। अब यदि ये बात मैं करता हूं तो इसका क्या मतलब बनता है? वी हैव EDS इज इक्वल टू सिग्मा DS बाय एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों गया, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय। इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा, दिमाग में बिठा के रखिएगा। जब हम लोग शीट लेते हैं तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और जब हम लोग प्लेट लेते हैं तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ओनली बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटेलिक कंडक्टर इज 0। इसके अंदर जो यहां पर जो मेटेलिक है, जो चार्ज पार्ट है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो इस प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड विल मूव ओनली अलोंग वन डायरेक्शन and flux is a scalar quantity that is well known। कोई दिक्कत? शीट में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लेट में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लेट किसको कहते हैं? जिसमें थिकनेस होता है, और मेटल शीट जिसमें थिकनेस है। शीट किसको कहते हैं? मेटल प्लेट जिसका थिकनेस 0 है। ये दो चीज सदा ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा चीज और मैं लिखना चाहूंगा। नोट में लिख लीजिए, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल only for infinite symmetry spherical object। इस चीज का ज्यादा ध्यान रखिएगा। इसीलिए जब भी हम लोग लिए हैं, या तो स्फेरिकल लिए हैं या जो भी कंडक्टर लिए हैं ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंशन लिए हैं, शीट लिए हैं, प्लेट लिए हैं, कोएक्सियल केबल लिए हैं, सबका इनफाइनाइट एक्सटेंशन लिए हैं, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर दैट। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? एक चीज ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगभग आपको हो रहा है +2 लेवल से, IIT JEE लेवल से। इससे बाहर थ्योरी कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक चीज तो दिमाग में बिठा लीजिए, आपको केवल न्यूमेरिकल देखना है, और न्यूमेरिकल के लिए चूंकि क्लास में प्रैक्टिस नहीं हो सकती है, 1 2 3 4 होगा, इससे ज्यादा होगा नहीं। इसके बेस से आपको न्यूमेरिकल के लिए कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी बिला किताब फॉलो कीजिए, बट प्रैक्टिस दैट। और जहां भी थ्योरी में प्रॉब्लम हो, जहां भी किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो, आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट में केवल एक बार लिख देना है, मैं आपके पास आ जाऊंगा। ये मेरा 25वां वीडियो है, 25वां लेक्चर है जो अपलोड हो रहा है। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको पसंद आया है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, आप इसको शेयर कीजिए, आप इसको लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि मेरा ये अपलोड अब होता ही रहेगा। लगातार मैं अब वीडियो अपलोड करूंगा, ताकि जितना साल का मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी एक्सपीरियंस है, वो मैं आप पूरे पब्लिक में दे रहा हूं, और जो चाहे वो आराम से ले सकते हैं।
Thank you very much.